Come on, all of you take out some number 19. अभी बस सर 19 sum. All of you take sum number 19. Riya Lathia video on Ansh Mehta. All of you take out sum number 19. Come on. Listen now. Be quiet. Pay attention. Sum number 19. Moon Company Limited with an authorized capital of rupees 20 lakhs divided into 20,000 equity shares of 100 each issued 10,000 equity shares of 100 each at a premium of rupees 30. At a premium of rupees 30 per share each payable as follows. मुझे पहले बताओ ऑथराइज कैपिटल का कोई लेना देना है प्रॉब्लम के साथ? नहीं. फर्स्ट पार्ट ऑथराइज कैपिटल अपने काम का नहीं है, अपर लिमिट है. इश्यू कितना किया है? How many shares have you issued? 10,000. 10,000 shares का इश्यू है, बराबर है? So issued shares are 10,000. First part is clear. Now what is the breakup of amount? Issue कैसे हो रहा है? 100 रुपए का शेयर क्या प्राइस पे इश्यू हो रहा है? 130. So what is that 30 rupees? Premium. What is the breakup of this 130 rupees now? 30 on application. Application पे it is 30. Allotment it is 60. Allotment it is 60. Then it is 20 on first call and balance on final call. First call पे 20 और second and final call पे भी कितना होगा? 20. Because then the total is 30, 60, 90 plus 20, 110 plus 20, 130. Right? Only then your total will become 130. Now we do not know where is the premium lying. Where is the premium lying? If nothing is specified, it is lying with allotment. So what is the breakup of allotment between capital and premium? It is 30 plus 30. Right? 30 रुपया कैपिटल की तरफ आने वाला है और 30 रुपया प्रॉफिट की तरफ आने वाला है, प्रीमियम की तरफ आने वाला है. बराबर है? 100 का शेयर 130 में जा रहा है, इश्यू हो रहा है. 30 rupees towards capital and 30 rupees towards premium in allotment. आपको बताया कुछ नहीं दिया तो premium always lies with what? Allotment. Let's begin, continue from there. आगे देखो applications कितना shares का आया. Applications were received for 9,000 shares. Can you see that? It received application for 9,000 equity shares. Is the issue oversubscribed, undersubscribed or at par? Undersubscribed है, over नहीं है, अंडर है. आपने 10,000 का मांगा था, एप्लीकेशन आए खाली 9,000 के. तो क्या कुछ एक्सेस की प्रॉब्लम है? कुछ प्रो रेटा, कुछ रिफंड होने का चांस है? यहाँ पे है क्या कुछ? क्यों नहीं है? क्योंकि पैसे ही कम मिले. पैसे जब ज्यादा मिलते हैं, हाँ 12,000 एप्लीकेशन आते, 15,000 आते, तो फिर प्रो रेटा या रिफंड का एंट्री करते हम लोग. बराबर है? यहाँ पे तो कम आए हैं, तो कितने शेयर्स की एंट्री करनी है आप? How many shares की entry you will be passing? Only 9,000 equity shares. Will be passing entries for only 9,000. All transactions will be for 9,000 equity shares. Is this clear? जूना ने जानी था अंडर सब्सक्रिप्शन, याद है पहले करते थे हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन. कम आया तो 9,000 शेयर का एंट्री करना पड़ेगा. बात समझ आई? आगे बढ़ो. क्या दिया उसने? Q was allotted 200 shares, did not pay the, अच्छा sorry, P was allotted 100 shares, did not pay the allotment money. Q was allotted 200 shares, did not pay the first call. All the shares were forfeited. All the shares were reissued at 110 per share. तो रीइश्यू भी हो रहा है, लेकिन रीइश्यू भी प्रीमियम पे हो रहा है. बहुत अच्छी कंपनी होती है ना, जिसको नाम खराब होने का इतना टेंशन नहीं है, वो अपने शेयर डिस्काउंट के जगह, पार के जगह प्रीमियम पे भी रीइश्यू कर सकती है. थोड़ा नाम खराब हो गया, इसके लिए आपने डिस्काउंट में किया ना, न्यू इन्वेस्टर्स को लू करने के लिए. बराबर है ना? बट उसमें तुम्हारा जो नया कंपनी, सॉरी अच्छा कंपनी होता है, जिसका नाम अच्छा है, जिसका नाम ऑलरेडी अच्छा है मार्केट में, उसको जरूरी नहीं है कि वो रीइश्यू डिस्काउंट पे करे.
पार पे भी कर सकती है, हमने एक एग्जांपल में पार भी देखा था, याद है? 100 का शेयर 100 में इश्यू किया था। यहाँ पर क्या हो रहा है, री इश्यू इज एट प्रीमियम। 100 का शेयर 100, तो कुछ लॉस है कि प्रॉफिट ओवर, और प्रॉफिट किधर जाता है, ऊपर का 10 रुपया किधर जाएगा, शेयर प्रीमियम। शेयर फोर फीचर में नहीं जाएगा, लॉस है तो फोर फीचर, प्रॉफिट है तो प्रीमियम। क्यों ऐसा होता है बताता हूँ, जब एंट्री आती है तब बता। तो शेयर, let's begin with the first entry. You tell me what is the first entry. Bank to equity share application. Bank to equity share application. कितना आएगा बोलो, कैसे 270 मिला भैया? How many shares की entry you have to do now? Only 9,000. So 9,000 into 30. 10,000 को भूल जाने का भी कोई काम का नहीं है। 10,000 बात समझ आई? This is 2,70,000 application received. मुझे बताओ, is there any excess की problem? So what will be your second entry? Equity share application debit to equity, please be quiet. Equity share application to equity share capital. What? How much will you transfer? Full 2,70,000. Excess का लफड़ा नहीं है. All entries for 9,000 shares. This is application transferred to capital. Application transferred to capital. So what? So what? Come on. Third entry. What is your third entry? Allotment due. And premium is lying with allotment. प्रीमियम कौन से एंट्री में एडजस्ट होता है, रिसीव्ड एंट्री में कि ड्यू एंट्री में? ड्यू एंट्री। तो यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी आप बताओ? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल टू व्हाट? शेयर प्रीमियम, या फिर दूसरा नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम। याद है, ये ड्यू एंट्री में ही क्रेडिट करती है कंपनी, सोच के कि भैया सब लोग पैसा देंगे, भरेंगे। तो पहले 9 भरा है तो सब लोग 9 पे भरने वाले हैं, अज्यूम ही करना है कि पहले भरा है तो बाद में भरना ही चाहिए। अच्छा, हाउ मच यू विल राइट इन अलॉटमेंट? 9,000 into 60, right? That is 5,40,000. Out of this 540, how much is towards capital and how much is towards 270? 30 रुपया कैपिटल, 30 रुपया प्रीमियम। 270 कैपिटल की तरफ आ रहा है, आने वाला है, और 270 प्रीमियम की तरफ आने वाला है। दिस इज अलॉटमेंट ड्यू विथ प्रीमियम या प्रीमियम एडजस्टेड। Allotment due with premium. This is allotment due with premium. Okay. Allotment due with premium. Allotment due with premium. Next one. Fourth entry for receiving the allotment. Tell me guys, are all the shareholders paying the allotment money? Who is defaulting? He is defaulting, right? Hello? What entry you will pass there? Bank account debit calls in arrears account debit to equity share allotment account. बराबर है? Correct? अच्छा, अलॉटमेंट में कितना एक्सपेक्टेड था? 5,40,000। कुछ एक्सेस था नहीं, तो पी के कितने शेयर्स पे उसने पैसा नहीं भरा है? 100 शेयर्स। 100 इंटू व्हाट? 60 रुपीज नहीं भरा। सबको 60 भरना था, इसको भी 60 भरना था,
तो 6,000 रुपया नहीं आया. What is the amount in bank? 5,34,000. Is that clear? This is allotment received and call in arrear adjusted. Allotment received and call in arrear adjusted. Clear with that? समझा यहां तक? अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना. P कहाँ डिफॉल्ट कर रहा है? अलॉटमेंट. P कहाँ डिफॉल्ट कर रहा है? प्रीमियम नहीं दिया है. तो फोर फीचर एंट्री में रूल के वक्त प्रीमियम डेबिट होगा. वंस रिसीव शुड नॉट बी डेबिटेड, बट नॉट रिसीव. तो याद रखना फोर फीचर के एंट्री में काम आएगा ये. फिफ्थ एंट्री क्या होगी अभी बताओ? फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू व्हाट? Equity share capital. Equity share first call to equity share capital. How much is expected on first? 9,000 shares पे कितना चाहिए आपको? 20 रुपया. कितना आएगा? 1,80,000 rupees. 1,80,000 rupees. This is first call due. This is first call due. बराबर है? What happened at the time of receiving the first call? What happened at the time of receiving the first call? Q did not pay. But what about P? Once a defaulter, always a defaulter. P और Q दोनों ने नहीं भरा. तो एंट्री क्या होगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrears account debit to what? Equity share first call. Bank calls in arrears to equity share first call. Now, first call mein we were expecting 180, right? Right? But who did not pay now the first call money? Two people, P and Q. How many shares of P? 100. How many shares of Q? 200. Total defaulters 300. 300 into 20 rupees. That's 6,000. How much you'll get in bank? 174. This is first call received and CIA adjusted. बराबर छे. यहाँ तक क्लियर सबको? Right? What next? What next? What next? Final call due की एंट्री क्या होगी? Equity share second and final call to what? Equity share capital. Batao, how much are we expecting in second call again? 180,000, right? 9,000 into 20. 1,80,000 you are expecting on second call due. This is second call due. Second call due. Tell me, did you receive the money on second call from all the shareholders? No. Who is the defaulter at the time of second call? P as well as Q. P as well as Q. Once a defaulter, always a defaulter. P ने allotment नहीं भरा तो उसने first और second call भी नहीं भरा. Q ने allotment, sorry, Q ने first call नहीं भरा तो Q ने second call भी नहीं भरा. तो दोनों मिलके default कर रहे हैं second call पे भी. Entry क्या बनेगी? Bank account debit calls in arrears account debit to what? Equity share second and final call account. शायद नजर गई तो जा सकता है. लास्ट कॉल में लिखना जरूरी है. सेकंड एंड फाइनल, थर्ड एंड फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल. ओके. Now, tell me, guys, how much are your calls in arrears? 300 shares पे 20 rupees. That is 6,000. So how much you'll receive in bank? 174 again, right? 300 शेयर पे डिफॉल्ट हो रहा है ना. 100 पी का और 200 क्यू का. दोनों ही डिफॉल्टर है. सेकेंड कॉल के वक्त भी दिस इज सेकेंड कॉल रिसीव्ड एंड CIA adjusted.
second call received and CIA adjusted. बराबर. Right? Sorted यहाँ तक. All of you. Okay. उसके बाद what is happening? What is the company doing with these shares? Forfeiting. What is the entry for forfeiture with premium? Equity share capital debit. Share premium debit. Very good. To call in arrears. To share forfeiture. एकदम correct बोला. सीखी क्यों भाई? To call in arrear to share forfeiture. इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट हुआ था कि डेबिट करना पड़ेगा? 300 शेयर्स पे, लेकिन कितने रुपए से? 300 इंटू व्हाट? 100. बराबर है ना? 100 रुपए से बढ़ाया था, अभी 100 रुपए से डेबिट करके घटाओ. इज दैट राइट? 100 रुपए से क्रेडिट हुआ इनका कैपिटल सबके साथ, अभी वो नलिफाई करना है तो 100 रुपए से कैंसिल करो, डेबिट करो. तो 300 इंटू 100 कितना होता है? 30,000. अच्छा, प्रीमियम का रूल दोनों के लिए अप्लाई करना है अलग अलग, पी के लिए भी और क्यू के लिए. पी के लिए भी और मुझे बताओ मिस्टर पी, व्हाट डिड ही पे? ओनली एप्लीकेशन. उसके भाग गया, एप्लीकेशन पे किया, भाग गया. डीडी पे अलॉटमेंट? नो. डीडी पे फर्स्ट कॉल? नो. डीडी पे सेकंड कॉल? नो. हमारा प्रीमियम किसके साथ पड़ा था? अलॉटमेंट के साथ. तो पी ने अलॉटमेंट नहीं भरा. पी ने अलॉटमेंट, तो क्या प्रीमियम भरा है? नहीं, क्योंकि प्रीमियम वाज लाइंग विद अलॉटमेंट. तो पी ने अलॉटमेंट नहीं भरा तो प्रीमियम भी, प्रीमियम का रूल क्या है? वंस रिसीव शुड नॉट बी डेबिटेड, बट नॉट रिसीव शुड बी डेबिटेड. तो पी का प्रीमियम डेबिट होगा कि नहीं? होगा, क्योंकि वंस रिसीव शुड नॉट बी, बट नॉट रिसीव. ई ने प्रीमियम, तो प्रीमियम का जो क्रेडिट है ना, क्रेडिट तो सबको दे दिया है 9,000 शेयर पे 30 रुपए के हिसाब से, सबका क्रेडिट में पड़ा हुआ है प्रीमियम. रिजर्व में प्रीमियम है, बट क्या पी ने पैसे भरे? तो क्या एसेट में बैंक है उसके सामने? इज इट अ जेन्युइन प्रॉफिट और अ फेक प्रॉफिट? फेक. गलत प्रॉफिट. गलत प्रॉफिट रख के मतलब प्रीमियम के सामने बैंक नहीं है, प्रीमियम के सामने कॉल इन अरियर. प्रीमियम के सामने क्या दिख रहा है अभी फिलहाल? कॉल इन अरियर. तो उसने पैसा नहीं भरा, तो दोनों को नलिफाई करो. प्रीमियम भी नलिफाई और कॉल इन अरियर भी नलिफाई. इज दिस क्लियर? तो प्रीमियम डेबिट करना है किसके लिए? पी के लिए. व्हाट अबाउट क्यू? क्यू ने क्या भरा? एप्लीकेशन और अलॉट. ये इसने फर्स्ट कॉल नहीं भरा और सेकंड कॉल नहीं भरा. क्या उसने अलॉटमेंट भरा? तो क्या उसने प्रीमियम भरा? तो प्रीमियम वंस रिसीव. इज दिस अ जेन्युइन प्रॉफिट और अ फेक? जेन्युइन. प्रीमियम जो क्रेडिट में है, रिजर्व में प्रीमियम है और सामने एसेट में बैंक में पैसा पड़ा हुआ है. तो क्यू के 200 शेयर्स पे पैसा आ चुका है, तो जेन्युइन प्रॉफिट है, उसको नलिफाई करने की जरूरत ना ही वो रिफंड करने की जरूरत है, वो हम हड़प ही लेंगे, हमारा ही प्रॉफिट. तो प्रीमियम के सामने बैंक रहने दो, ऐसे ही रहने दो, कुछ डेबिट क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है. बात समझ आई? तो प्रीमियम रिसीव्ड है तो डेबिट करने का जरूरत नहीं है. प्रीमियम वंस रिसीव should not be debit, but not receive should be debit. तो यहाँ पे किसका प्रीमियम डेबिट करना? 100. किसका प्रीमियम डेबिट करना है? पी का. पी के कितने शेयर्स थे? 100 की 200? 100 शेयर इंटू कितना प्रीमियम? 30 रुपीज. तो कितना होता है? 3,000. सिर्फ पी का डेबिट होगा, क्यू का डेबिट नहीं होगा. इज दिस क्लियर? पी का ही डेबिट होगा. पी का ही डेबिट होगा. क्यों? क्योंकि पी ने प्रीमियम नहीं भरा, क्यू ने प्रीमियम भरा. ऐसे पता चला, समझे? P did not pay the allotment, so P did not pay the premium. Q paid the allotment, Q paid the premium. So once received should not be debited, not received should be debited. ये हो गया. अभी कॉल इन अरियर दोनों का जोड़ के करो. 6 + 6 + 6 तीनों जगह 6 18,000 होता है. तो फोर फीचर में क्या है? 15,000 आ रहा है, राइट? कैसे किया? अच्छा, 18,000 कैसे किया? 6 सब कॉल इन अरियर, कॉल इन अरियर, कॉल इन अरियर, कॉल इन अरियर. All call in arrear you add, that is 18. Okay.
बद्दू जावी। अभी मुझे बोलो ये 15,000 क्या है? फोर फीचर में क्या है? हड़पा हुआ पैसा टुवर्ड्स कैपिटल, हड़पा हुआ पैसा टुवर्ड्स कैपिटल। लेट्स वेरीफाई, इधर आप भी वेरीफाई करके लिखो इधर। इसमें पी का कितना हड़पा हुआ है और क्यू का कितना हड़पा हुआ है? लेट्स वेरीफाई, कम ऑन। पी का पहले बताओ कितना शेयर्स था? 100। पी ने कैपिटल की तरफ क्या भरा है? ये भर के भाग गया, आगे का कुछ भी भरा है? खाली 30 रुपया भरा है। तो पी का कितना है? 100 इंटू 30, राइट? कितना होता है? 3000। 3000 हड़प लिया हमने। व्हाट डिड क्यू पे? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बराबर छे। भाई ने 30 और 60 90 रुपया भरा है। लेकिन फोर फीचर में कौन सा अमाउंट देखा जाता है? अमाउंट रिसीव टुवर्ड्स कैपिटल। अमाउंट रिसीव टुवर्ड्स कैपिटल की तरफ कितना भरा है? 30 और 30 कितना होता है? 60। 60 इंटू हाउ मेनी शेयर्स? 200 शेयर्स। 200 इंटू 60 कितना होता है? बोलो। 12 और 3, 12 और 3 हो रहा है मैच, हो गया सेट। क्यू का 30 रुपया प्रीमियम किधर पड़ा हुआ है? नहीं, क्यू का जो ये 30 रुपीज प्रीमियम भरा था वो इसके साथ पड़ा हुआ है, और बैंक में पैसा भी आ गया, वो भी हड़पा है लेकिन वो प्रीमियम में पड़ा, विदाउट प्रीमियम। फोर फीचर में जो प्रॉफिट है उसमें प्रीमियम नहीं है, उसमें खाली कैपिटल की तरफ हड़पा हुआ पैसा। हेलो, उसके ऊपर का पैसा प्रीमियम में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। बात समझ आई? तो वंस अगेन, कैपिटल को कितने से मल्टीप्लाई किया मैंने? बताओ। फोर फीचर एंट्री, कैपिटल को कितने से मल्टीप्लाई किया? कितने से डेबिट किया? कितने से मल्टीप्लाई किया? 100 रुपए। ये 100 से क्रेडिट हुआ है, 100 से डेबिट। नलिफाई करना। व्हाट इफ मैं यहां पे कैंसिल करता? फर्स्ट कॉल के बाद अगर कैंसिल करता तो कैपिटल को कितने से मल्टीप्लाई करता? फर्स्ट कॉल के बाद यहां पे कैंसिल करता, मतलब एप्लीकेशन मंगाया, अलॉटमेंट मंगाया, फर्स्ट कॉल मंगाया और यहाँ पे फोरफिट कर दिया, तो कैपिटल को कितने से मल्टीप्लाई करते? कैपिटल 30 plus 30, 60 plus 20, 80. What if you would have cancelled it at the time of allotment? After allotment, 30 plus 30, 60. जितने से क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट। ये एंड में कर रहे हो ना, यहाँ पे कर रहे हो आप कैंसिल, तो इसलिए 100 से। जितने से कैपिटल क्रेडिट हो रहा है सेकेंड कॉल तक उतने से डेबिट। अगर आप फर्स्ट कॉल के बाद वहां पर भी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फोर फीचर इन बिटवीन, उसको बोलते हैं फोर फीचर इन बिटवीन। अगले समय वही करवाऊंगा। फोर फीचर इन बिटवीन का मतलब क्या? कंपनी एंड तक वेट नहीं किया, बीच में ही शेयर को कैंसिल कर दिया। फर्स्ट कॉल नहीं भरा, गुस्सा आया, कैंसिल कर दिया। अलॉटमेंट नहीं भरा, गुस्सा आया, कैंसिल कर दिया। फर्स्ट और सेकंड कॉल का वाट देखा ही नहीं। नहीं आवे करसू, आज करसू। देखो, सो बोलने का मतलब कैपिटल में क्या है? कॉल्ड अप वैल्यू लिखने का, जितने से क्रेडिट हुआ है उतने से डेबिट। एंड में कर रहे हो तो 100, फर्स्ट कॉल के बाद कर रहे थे तो 80, सेकेंड अलॉटमेंट के बाद कर रहे थे तो 60, आगे आएगा। इधर कब कर रहे हो? सेकेंड कॉल के बाद, तो 100 से क्रेडिट हुआ है ना, सब हुआ है। यहाँ पे क्रेडिट हुआ, इधर क्रेडिट हुआ, इधर क्रेडिट हुआ, इधर क्रेडिट हुआ, ऐसे 100 रुपए से क्रेडिट हो गया ना सबका। अभी पी और क्यू का कैंसिल करना है तो 100 रुपए से डेबिट किया, नलिफाई किया, समझा? तो 100 रुपीज। प्रीमियम का क्या रूल है? वंस रिसीव शुड नॉट बी डेबिटेड, नॉट रिसीव शुड बी डेबिटेड। पी ने प्रीमियम भरा था तो इसलिए उसका हमने डेबिट किया। क्यू ने प्रीमियम भरा था, उसका डेबिट नहीं। कॉल इन अरियर कहां से मिला? कॉल इन अरियर बताओ। तीनों को ऐड करें, बराबर है? तीनों को ऐड करके मिल गया कॉल इन अरियर। फोर फीचर में बैलेंस लिखा हमने, उसको वेरीफाई भी कर लेने का। व्हाट इज फोर फीचर? कौन सा हड़पा हुआ पैसा? कैपिटल की तरफ हड़पा हुआ पैसा, तो उसमें प्रीमियम ऑलरेडी अलग अकाउंट में पड़ा हुआ, बैंक और प्रीमियम दोनों पड़ा हुआ। बढ़ो आगे। आफ्टर फोर फीचर नहीं प्रीमियम क्रेडिट हो। देखो बताता हूँ। व्हाट इज द रीइश्यू एंट्री ऑफ 300 इक्विटी शेयर? क्या प्राइस पे रीइश्यू कर रहे हो? देखो वहां
110 में कर रहे हो, 100 के शेयर्स आप कितने प्राइस पे इश्यू कर रहे हो? 110 में। तो ज्यादा प्राइस पे कर रहे हो कि कम प्राइस? तो कंपनी ऐसा कर सकती है, अगर नाम अच्छा है मार्केट में, तो शेयर होल्डर 110 भी देने को रेडी होंगे, बोलेंगे मार्केट में बेच देंगे बाद में हाई प्राइस आएगा। तो 100 के ऊपर मिल रहा है ना, 100 के ऊपर मिल रहा है तो वो फोर फीचर नहीं है। 100 के ऊपर जो मिलता है वो प्रीमियम ही होगा। क्यों होगा बताता हूँ। तो एंट्री बनेगी आपकी क्या? बैंक अकाउंट डेबिट। आप बता सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट लॉस है कुछ नहीं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू व्हाट? शेयर प्रीमियम अकाउंट। इक्विटी शेयर प्रीमियम या शेयर प्रीमियम अकाउंट। ये बताओ बैंक में कितना आएगा? बैंक में आएगा 300 शेयर्स पे 110 रुपया, दैट इज हाउ मच? 33,000। कैपिटल में आएगा कितना? 100 इंटू 300 दैट इज 30,000। एंड प्रीमियम में कितना आएगा? 10 इंटू 300 दैट इज 3,000। इज दिस क्लियर? हेलो, दिस इज रीइश्यू। दिस इज रीइश्यू ऑफ 300 इक्विटी शेयर। अब क्यों मैंने प्रीमियम को क्रेडिट किया और क्यों फोर फीचर को क्रेडिट नहीं किया राहुल भैया? Why did I credit premium and why not four feature? जा नहीं रहा है, आ रहा है यहाँ पे। देखो हाँ, फोर फीचर भी प्रॉफिट है, फोर फीचर भी प्रॉफिट और प्रीमियम भी प्रॉफिट, दोनों प्रॉफिट है। तो why the hell I did not write your four feature and why did I write premium? प्रीमियम की तरफ पैसा है, वो फोर फीचर कैपिटल की तरफ। फोर फीचर कैपिटल की तरफ होता है 100%। ये ऊपर आ रहा है, मलाई आ रही है, तो प्रीमियम होना चाहिए। बट व्हाट इज द कंसेप्चुअल यहाँ पे थिंग? क्यों ऐसा नहीं कर सकते? क्यों इधर फोर फीचर नहीं लिख सकते? अगर आपने इधर फोर फीचर लिखा ना रीइश्यू में, तो आप टोपी घुमाने का काम। क्यों टोपी घुमाने का काम कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? ये जो नए वाले शेयर्स रीइश्यू कर रहे हो, यहाँ पे तो सबके सब कर दिए 300, समझो 100 शेयर्स रीइश्यू कितने, और वो प्रीमियम पे होते, वो प्रीमियम पे होते। और अगर आप प्रीमियम के जगह यहाँ पे लिख देते फोर फीचर, और फिर 200 शेयर को आप डिस्काउंट पे रीइश्यू कर, 200 शेयर को आप, तो वो लॉस किधर जाता? फोर फीचर में। तो आप एक का प्रीमियम दूसरे के लॉस में एडजस्ट कर रहे हो। मतलब फॉर एग्जांपल मैं 100 शेयर राहुल को रीइश्यू करता 90 रुपए, 100 शेयर राहुल को रीइश्यू करता 90 रुपए, और 100 शेयर वरुण को रीइश्यू करता 110 में। इससे 110 जो फोर फीचर है ना ऊपर 10 रुपए, वो इसके लॉस में एडजस्ट कर देता मैं। इसमें इसका तो फायदा हो गया, उसका नुकसान हो गया। उस शेयर होल्डर का नुकसान है। क्यों? क्योंकि उसको मैंने 110 में दिया है और इसको मैंने, और इसका 10 रुपया फोर फीचर में इसमें एडजस्ट कर रहा हूं। तो ऐसे कंपनी अपने रिश्तेदारों को बोलेगी आप रुको रुको रुको, पहले में हम लोग प्रीमियम में चिपका के आते हैं, मस्त में हायर प्राइस में शेयर्स बेच के आते हैं, जो प्रीमियम रहेगा वो फोर फीचर में डाल देंगे, और जब रीइश्यू करेंगे तो वही फोर फीचर आपके लॉस में एडजस्ट कर देंगे, अपने रिश्तेदार को कम भाव पे बेच देगा वो शेयर। दैट इज इनजस्टिस टू सम शेयर होल्डर एंड एक्स्ट्रा बेनिफिट टू सम अदर शेयर होल्डर। इज दिस क्लियर? तो बोलने का मतलब कभी भी कैपिटल के ऊपर कुछ पैसा आता है वो फोर फीचर में डालने का, इधर डालने का, शेयर प्रीमियम। बात समझ आई? तो कैपिटल के हद तक शेयर फोर फीचर, कैपिटल के ऊपर प्रीमियम, कैपिटल के ऊपर प्रीमियम। बात समझ आई? तो हमेशा याद रखना। अच्छा, यही शेयर 90 में रीइश्यू होते तो 90 में रीइश्यू होते तो क्या एंट्री? तो बैंक शेयर फोर फीचर टू कैपिटल, लॉस है तो किधर से उठाने का? फोर फीचर, बट प्रॉफिट है तो प्रीमियम, और पार पे होता तो एंट्री, पार पे रीइश्यू होता तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नो प्रॉफिट। अब इसके साथ चेंबूर के साथ तिलक नगर फ्री, व्हाट इज दैट एंट्री? ट्रांसफर योर टेम्पररी रिजर्व टू परमानेंट रिजर्व। व्हाट इज द टेम्पररी रिजर्व? किधर डालने का? परमानेंट में। शेयर फोर फीचर में कितना प्रॉफिट था? 15,000। कुछ लॉस हुआ है? नहीं, तो कितना ट्रांसफर करो? 15। पूरा का पूरा 15 और 3 18 मत कर देना, ये 3,000 फोर फीचर नहीं है क्या? ये बापा ये 3,000 क्या है? ये प्रीमियम है, समझा कि नहीं?
प्रीमियम फोर फीचर का भेलपुरी बनाने का, फोर फीचर अलग रिजर्व, जो जाएगा कैपिटल रिजर्व, प्रीमियम अलग रिजर्व, यूजेस के हिसाब से अलग अलग रखा हो। चलो बताओ मुझे, एंट्री क्या होगी? शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। हाउ मच? 15,000. This is share for feature transferred to capital reserve. बोलो घर वाले क्लियर? कीर्तना को समझा? हाँ सर. So can you explain me the 9th entry? How did you get this amount? सब लोग सवेरे सवेरे आ गए, 2 बजे वाले भी इधर ही आ गए। सर साइड जैसा निकालते हैं, ऑफ वीडियोस वाले समझ नहीं रहे अभी। Let's remove a few people. Starting with Anuj. Dev Patel. Jainam Shah. और कौन है? निशिशा। और कौन है? रेनिसा। और कौन है? रुचि लाथिया। तानिया। और कौन है? चलो कंटिन्यू। हाँ શું કહેવાય? કેમ લોસ? પ્રોફિટ થયું, વધારે પૈસા આવ્યા ને। ઓરિજિનલ ના કમ્પેરિઝન માં કે છે ને, ઓરિજિનલ ના કમ્પેરિઝન માં નહીં ગણવાનું, ફેસ વેલ્યુ ના અંદર જે આવે ને એ લો। કારણ કે તારી લાયબિલિટી શું છે, એન્ડ માં જ્યારે લિક્વિડેટ થશે ને તો તને શેર હોલ્ડર્સ ને 100 રૂપિયા ભરવાનું પ્રોમિસ છે। प्रीमियम तो फ्लक्चुएट થતું હોય માર્કેટ પ્રાઇસ ના હિસાબે, તારી લાયબિલિટી કેટલી છે? 10 રૂપિયા, 100 રૂપિયા લિક્વિડેટ થશે 10 રૂપિયા આપીશું, એનાથી ઉપરનું કઈ પ્રોમિસ? So can આમ નથી કે હમણાં 130 લીધા છે તો જ્યારે બંધ થશે 130 આપીશ, નો, ધેટ ઇઝ ઉપરનું પ્રોફિટ। 10 પણ આપી શકે, 20, 30, 40, કે ન મળે તો 10, કેટલું આવે એટલું ફેસ વેલ્યુ। લાયબિલિટી ખાલી 10 ની છે, નુકસાન એના નીચે, ઉપર નહીં। so चलो next sum. Now we are doing a new concept called four feature in between. Okay, I want you all to take problem number 25 था ना? नहीं 25 wait, हाँ सम नंबर 10, 10th sum, 10th sum, 10th sum. Jia Company Limited issued 10,000 equity shares of 10 each, payable 2 on application, 3 on allotment, 2 on first call, 3 on final call. Is there any premium? What is the breakup? 10 का शेयर 10 में आ रहा है, 2, 3, 2, 3, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, बराबर छे? Is there any premium? Is there any premium? No. Now read further. The company received application for 8,000 shares. अरे बाप रे, is it over subscription or under subscription? तो कितने शेयर्स का एंट्री करने? कुछ एक्सेस का प्रॉब्लम है, कुछ रिफंड करना है, कुछ प्रो रेटा है, बढ़वा। P was allotted 100 shares, did not pay the allotment money. राजी खुशी में आ गया, अलॉटमेंट नहीं भरा, मजा में। P ने नहीं भरा, P ने अलॉटमेंट नहीं भरा। कंपनी forfeited 100 shares immediately. बोला आता माझी सटकली, मैं सेकंड कॉल तक वेट करने वाला
क्या भीख मांगते रहने का, फर्स्ट कॉल भरेगा, सेकंड कॉल भरेगा, उसके बाद लेटर भेजने का, अभी काटो, अभी कैंसिल करो. दिस डिसीजन इज टेकन इन द बोर्ड मीटिंग बाय द डायरेक्टर्स. उनको लगेगा लंबा चलाने का है, चला सकते, उनको लगेगा काटने का है, काट सकते. कंपनी एज एन ऑप्शन एक डिफॉल्ट पे भी उसका शेयर को फोरफिट कर सकता. और फिर शाना इसमें तो नहीं है, आगे आएगा आपको सामने. कंपनी उधर के उधर रीइश्यू भी कर सकता है ताबड़तोड़. अलॉटमेंट के बाद कैंसिल करेगा, जैसे कि पी है, पी ने 100 शेयर पे अलॉटमेंट नहीं भरा ना, ताबड़तोड़ कैंसिल, और उधर का उधर ही 100 शेयर रीइश्यू कर देगा. फिर अभी जो शेयर होल्डर होंगे ना, वो बचा हुआ फर्स्ट और सेकंड कॉल भर दे. उनको 5 ही रुपया भरने का, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट रीइश्यू के बाद. बात समझ आई? दे विल पे ओनली एप्लीकेशन एंड अलॉट, द रीइश्यू वाला शेयर. आगे के कॉल भी भरेंगे, अभी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही भरेंगे. आप लोग एंड में रीइश्यू करते तो पूरा 10 रुपया लेते ही हो ना. ये आगे का भी लेंगे तो नए वाले, और जो आया पहले का वो 4 फीचर, उसका 4 फीचर फ्री फंड. पेनल्टी नहीं, सेकंड कॉल साथे ફોરફિટ કરી શકે. ઈ જ્યારે ભરે ને ત્યારે ઇન્ટરેસ્ટ લગાડે એના ઉપર, પણ ભરે તો. હવે કોલના જ પૈસા ન ભરતો તો પેનલ્ટી શું લગાવી? સેકન્ડ ભરવા આવે ને સેકન્ડ ભરે ને તો આપણે એને ઇન્ટરેસ્ટ ચાર્જ કરી શકીએ. 10 ને 12% નું ઇન્ટરેસ્ટ રેટ પણ આપેલું છે. પણ અગર ઈ સેકન્ડ કોલના ટાઈમે ભરે તો, ભરે જ નહીં તો પછી બંનેના સાથે ફોરફિટ. तो हुआ क्या, ये सब में अलग क्या हो रहा है समझ में आ रहा है? क्या अलग हो रहा है? आर यू कैंसिलिंग द शेयर्स एट द एंड, ऑन द स्पॉट, आफ्टर अलॉटमेंट? फिर आगे पढ़ो. द Q who was allotted 100 shares did not pay the first call. Q 100 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं भरा. द कंपनी forfeited 100 shares on which the first call was. जैसा फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, ताबड़तोड़ कंपनी ने क्यू का शेयर्स भी काट दिया, कैंसिल कर दिया. अलॉटमेंट के बाद किसको उड़ाया? पी को. फर्स्ट कॉल के बाद किसको उड़ाया? क्यू को. फिर भी आर को अक्कल नहीं आई. सर आर दिशिता was को अंदर allotted लो ना. 100 shares. सर दिशिता को अंदर लो ना. R was allotted 100 shares, did not pay the second call. मस्त मौजा. उसको लगा कुछ नहीं, इंदो का कैंसिल होगा, मेरा कुछ नहीं होगा. कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने उसका भी सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट कर दिया. दिख रहा है? तो तीसरे वाले का तो नॉर्मल ही है, सेकंड कॉल के बाद आप करते हो जो, पहले और दूसरे का बीच में उड़ा दिया. देन कंपनी रीइश्यूड all forfeited shares at 8 per share paid up. Can you see that? तो रीइश्यू तो कर रही है, लेकिन कब कर रही है रीइश्यू? एट द एंड. ताबड़तोड़ रीइश्यू नहीं किया. मैंने आपको बताया कंपनी ताबड़तोड़ रीइश्यू भी कर सकती है, लेकिन यहाँ पे ताबड़तोड़ रीइश्यू नहीं किया. हाँ है, अभी करेंगे. सो फिलहाल इट इज जस्ट 4 फीचर इन बिटवीन. तो इमीडिएटली फॉरफिट किया, लेकिन इमीडिएटली रीइश्यू नहीं किया. ठीक है, लास्ट में रीइश्यू किया, सबके मिला के 300 के 300 शेयर लास्ट में रीइश्यू. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट. व्हाट इज द फर्स्ट एंड? What? He was smart नहीं, he was dumb ना. You are not getting it. I'll explain. जो sum number 10 we are doing. चलो be एकदम quiet. Very important conceptual sum this is. Come on. Shh. Be quiet. Ameya, shut up. Bank to equity share application. How much? Bank to equity share application, how much? 8,000 into 2. All of you write down. 8,000 पे ही आया. Is it over or under? Under subscribe. बराबर है. So 16,000.
Bank to application 16,000, right? Okay, tell me how much you will transfer equity share application to equity share capital. Again 16, equity share application to equity share capital 16, bank to application and application to capital, bank to application and application to capital. Okay, bank to application and application to capital. Sorted? Now, what is the third entry? Equity share allotment to equity share capital. Is there any premium? है कुछ premium? No premium. Was there any excess? Which refund, pro rata, anything? Nothing. Equity share allotment to equity share capital. How much would transfer to from equity share allotment to equity share? 8 into 3. That is how much? 24,000. Is that right? 8 into 3. That is 24,000. Sorted? Okay. Tell me, did all the shareholders pay the allotment money? Who defaulted? P के पास कितने shares? 100 shares. 100 shares पे उसने allotment का पैसा नहीं दिया. तो 100 into what? 3 rupees. That is how much? 300. और आपको चाहिए था 24 और आपको हाथ में मिला कितना? 23,700. Right? Bank में you received 23,700. Is that clear? Got it? Hello. So bank call in arrear to allotment sorted यहाँ तक. Bank call in arrear to equity share allotment. यहाँ से आपका गाड़ी change हो गया. Okay. What happened now? After allotment. Normally क्या होता है after allotment? What do you do? First call मांगते, right? But यहाँ पर आप सीधा सीधा first call मांगोगे नहीं. क्या किया आपने? सीधा उधर का उधर ही 100 शेयर को क्या कर दिया आपने? फोरफीट कर दिया. 100 शेयर को आपने क्या किया? फोरफीट कर दिया. फोरफीट माने फोरफीट मतलब कैंसल. इधर का इधर ही 5वें एंट्री में कैंसल कर दिया. इसके 100 शेयर को कैंसिल किया, पी के 100 शेयर. The same forfeiture entry you pass. What is the forfeiture entry? कैपिटल को डेबिट करो, टू कॉल इन अरियर को क्रेडिट करो, नलिफाई करो, टू व्हाट? शेयर फोरफीचर. जो पैसा भरा था उसको हड़प, जो पैसा भरा था उसको हड़प. बराबर है? शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल इन अरियर टू शेयर फोरफीचर. ठीक है. अभी गम्मत. शेयर कैपिटल कितने से मल्टीप्लाई करोगे? विल यू डू 100 into 10? Why 100 into 5? Because ये यहाँ पर you are cancelling the shares at the time of allotment. You are cancelling the shares at the time of allotment. So 100 into 5. 100 into 5. That comes to how much? 500. क्यों मैंने 10 से नहीं किया और क्यों 5 से किया? क्योंकि अभी तक कितने से क्रेडिट हुआ है कैपिटल? 5. तो डेबिट भी कितने से करने का? 5. कैंसिल भी कितने से करने का? 5. समझ आई? अगर 10 से क्रेडिट हुआ होता है एंड तक तो मैं 10 से डेबिट करता. 5 से ही क्रेडिट हुआ है, 5 से ही बड़ा है, कैंसिल भी कितने से होगा? 5 से. तो 100 into 5. ये ध्यान रखना है यहाँ पे. 100 into 5 कॉल्ड अप वैल्यू. तो 500 रुपया इन कैपिटल. अभी कॉल इन अरियर में कितना आएगा? 300 जो उसने नहीं भरा, और बचा हुआ 200 आपका जाएगा फोर फीचर में. व्हाट इज फोर फीचर? जो पैसा उसने भरा कैपिटल की तरफ बढ़ा, जो हमने हड़प लिया. क्या भरा था बेचारे ने? 2 रुपया भरा था एप्लीकेशन का. तो 100 into 2 कितना होता है? 200. 100 into 2 कितना होता है? नया पार्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या तुम लोग? इतना बोर्ड पे देखने का ना, सिंपल कॉमन सेंस इट इज. 300 रुपया कॉल इन अरियर नलिफाई हुआ, और शेयर फोर फीचर में कितना आएगा? व्हाट इज दिस? 200 हड़पा हुआ. एप्लीकेशन का 2 रुपया हड़प लिया, वापस दिया नहीं.
capital to call in arrear to share forfeiture. This is forfeiture of 100 equity share. Forfeiture of 100 equity shares. 100 shares आपने कर दिए कैंसल. 100 shares आपने कर दिए कैंसल. क्या आपने रीइश्यू किया ताबड़तोड़ अभी के अभी? ये 100 शेयर कंपनी के किटी में है कि कम हो गए? मतलब ऐसे यहां से कम हो गए, बाद में पड़े हुए हैं रीइश्यू करने के लिए. वैसे यहां से उड़ गए, ये इश्यू में से उड़ गए. अभी ये एंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 6th एंट्री. ये कैंसिल कर दिया, 100 शेयर को उड़ाया. डिड वी रीइश्यू? नो. नाउ व्हाट विल बी द 6th एंट्री? नॉर्मली 6th एंट्री क्या करते? फर्स्ट कॉल टू कैपिटल. ध्यान से देखना, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. ये कितने शेयर्स पे मंगवा होगा? 7,000. व्हाई नॉट ऑन 8,000? ये तो है ही नहीं, ये तो दफन हो चुके हैं, गॉन. सो अब ये वाली एंट्री विल नॉट बी ऑन 8,000 शेयर्स बट ऑन, पहली बार हिस्ट्री में ये एंट्री चेंज हो रही है. 7,900 इंटू 2 कितना होता है? 15,800. 15,800. ये क्यों मैंने 7,900 से किया? 100 शेयर अभी है क्या बुक्स में? क्या रीइश्यू हुए हैं? क्या रीइश्यू भी नहीं हुआ है, बुक्स में से कैंसिल हो चुके हैं. तो जब रीइश्यू करोगे तब उनसे पैसा लोगे. अब कितने शेयर से, फिलहाल कितने से मंगवाना है? ओनली 7,900. जो कैंसिल हो गए उस पर बाकी का पैसा मंगवाने का कि नहीं? 7,900 into 2, 15,800. This is first call due. First call due. ये इंपॉर्टेंट है, 6th एंट्री. ओके, मुझे बताओ, अगर चलो लिख लो ये, और मुझे एक चीज बताओ, अगर आपने इधर फोरफिट किया बराबर है और इधर ही रीइश्यू भी कर दिया, तो फिर कितने शेयर पे फर्स्ट कॉल मंगवाए? तो फिर 8. तो फिर 8 तो सबको भर. इधर कैसा पूरा मंगवाएगा? वो येड़ा है क्या भरने के लिए? वो 5 ही मंगवाया सबसे, और उससे 10 मंगवाएगा तू? उससे भी 5 ही मंगवाएगा ना. वो भी बोलेगा मैं फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सबके साथ भरूंगा, बराबर है ना? तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये ड्यू अमाउंट की एंट्री विल बी ओनली ऑन 7,900 because 100 have been already cancelled. What happens at the time of receiving the money? बैंक, then what? दूसरा आ गया, एक तो गया, दूसरा आ गया. बैंक कॉल इन अरियर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल. आपको चाहिए थे 15,800, क्या सबने भरे फर्स्ट कॉल? हु डिफॉल्टेड? क्यू डिफॉल्टेड, राइट? हेलो, कौन डिफॉल्ट किया इस पे? क्यू की पी एंड क्यू बोथ? ओनली क्यू. नाउ व्हाट अबाउट पी? गया, टाटा, बाय बाय, खत्म. ओके, पी तो गया है, बचा कौन? क्यू बचा है. तो क्यू ने डिफॉल्ट किया, तो क्यू के कितने शेयर है? 100 शेयर पे 2 रुपया, कितना होता है? 200. 15,600 will be received in bank. Is that right? 15,600 you will receive in bank. अच्छा, इधर कंपनी को वापस गुस्सा आया, आता माझी सटकली, कंपनी की दूसरी बार सटकली, तो 8th एंट्री में क्या करोगे? वापस forfeiture. Narration for the 7th entry. Okay, equity share capital account debit to call in arrears to share forfeiture. बराबर छे? अच्छा, मुझे सोच के बताना, इक्विटी शेयर कैपिटल में अब कितना वैल्यू लिखो? कहां कैंसिल कर रहे हो आप? यहां करो. यहां मतलब आफ्टर फर्स्ट कॉल. आफ्टर फर्स्ट कॉल, ये पहला आफ्टर अलॉटमेंट हो गया, अभी आफ्टर फर्स्ट कॉल कर रहे हो. तो 100 इंटू व्हाट? वाई 7 यू गॉट इट. 7 से क्रेडिट किया, 7 से डेबिट करो. लास्ट में करते तो कितने से करते? 10 से. इधर कर रहे हो तो 7 से, इधर कर रहे हो तो 5 से. जितना कॉल्ड अप है, जितने से क्रेडिट किया है उतने से कॉल्ड अप वैल्यू. बेसिकली विच वैल्यू? कॉल्ड अप. कैपिटल में कॉल्ड अप. 10 से क्रेडिट हुआ है, 10 से डेबिट करो. 7 से क्रेडिट हुआ है, 7 से डेबिट करो. कॉल इन अरियर कितना है? किसका लेना है? पी क्यू दोनों का कि सिर्फ क्यू का?
सिर्फ क्यू का 200 रुपया। तो कितना आएगा इसका फोर फीचर? 500। What did Q pay? What did Q pay? Application and allotment. Did he pay the first call? No. नहीं भरा इसलिए तो कैंसिल किया। कितना भरा था भैया? पी ने सॉरी क्यू ने एप्लीकेशन पे 2 रुपया भरा था और अलॉटमेंट पे 3 रुपया भरा था। टोटल कितना भरा? 5 इंटू 100 कितना होता है? 500। 500 हड़प लिया हमने। 5 इंटू 100 100 इंटू 5 500 रुपया भरा था, हड़प लिया ना। That's your profit. That's your profit. This is forfeiture of 100 equity shares. अब बताओ क्या हो रहा है इसके बाद? 9th एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल, बट this will be on how many shares? Why not 7,000? Why not 8,000? 8 में से 100 की बलि पहले चढ़ गई, बाद में 100 गए और 100 और 100 200 कैंसिल हो चुके हैं, तो बचे कितने? 7,800 into what? 3 rupees. That is, I think, Nana. 23,400. 23,400 is what you are expecting. Why are we doing 7,800 recorded? 8,000 थे, में से पहले P उड़ गया, फिर Q उड़ गया, तो बचे हुए शेयर्स कितने? 7,800। उसी पे आप मंगवाओगे सेकंड कॉल। दिस इज सेकंड कॉल ड्यू। अब रिसीव करने के बारी आई तो कौन आ गया? तीसरा नमूना R। क्या होगी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrears account debit to what? Equity share capital. अच्छा, equity share second and final. अच्छा, बैंक कॉल इन जो सेकंड एंड फाइनल कॉल। आपको चाहिए कितना? 23,400, बट पैसे कितने शेयर्स पे नहीं आया? Who is defaulting? आर का कितना शेयर्स? आर का इंटू 3 कितना होता है? 23,100. Is this clear? This is second call received and CIE adjusted. Second call तक सबको clear? All of you clear till second call? अब बताओ मुझे इसके बाद क्या कर रही है कंपनी? वापस कैंसिल करेगी? हाँ सॉरी, किसके शेयर कैंसिल करेगी? आर के कैंसिल करेगी। यस, सिर्फ आर ने कैंसिल, आर ने यहाँ पे नहीं भरा है सेकंड कॉल, तो आर के शेयर कैंसिल करेगी। कितने शेयर कैंसिल करने हैं आर के? 100 शेयर। एंट्री क्या होगी? रिमेन्स सेम। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू व्हाट? कॉल्स इन अरियर्स टू व्हाट? शेयर forfeit. अच्छा, how much you will multiply your capital with now? 10 rupees. When are you cancelling? After second. तो कितने से क्रेडिट हो चुका है सबका कैपिटल? अभी 10 से। आर का भी हो गया 10 से क्रेडिट, तो कितने से डेबिट करने का? 10 से। इज दिस क्लियर? ये तो नॉर्मल है जो हर एक सम में करते हो आप एंड में। तो 100 इंटू 10 कितना होता है? 1000। अच्छा, उसमें से कॉल इन अरियर किसका देखना है? पी का देखना है, क्यू का देखना है, आर का देखना है? आर का ही देखना है। आर का कितना है? सीआईए। आर का सीआईए 300 और आर का फोर फीचर 700। क्या होता है फोर फीचर में? क्या होता है फोर फीचर में? हड़पा हुआ पैसा। किसका हड़पा हुआ है? आर का हड़पा हुआ है कैपिटल की तरफ, राइट? आर ने क्या भरा था? 2 3 2 बोले तो 7 इंटू कितना शेयर्स था? 100 बराबर है 2 3 2 7 रुपया भरा था। 7 इंटू 100 इज, वो आ गया, हड़प लिया। अभी सबके शेयर कैंसिल हो चुके हैं, यस और नो? फोर फीचर ऑफ 100 इक्विटी शेयर्स, इज दैट राइट? सबके शेयर कैंसिल हो गए, राइट?
अब क्या वापस कैंसिल करोगे सबके शेयर्स? नहीं। कितना कैंसिल? मरे हुए को क्या मान। अभी क्या करोगे इसके बाद? री इश्यू करोगे। खाली 100 शेयर री इश्यू करोगे कि 200 कि 300? पक्का? पी का 100, क्यू का 100 और आर का 100, सब 300 री इश्यू कर रहे हो। क्या प्राइस पे कर रहे हो? 8 रुपीज में कर रहे हो। कब री इश्यू कर रहे हो? एट द एंड। एट द एंड। कैपिटल कितने से मल्टीप्लाई होगा? कैपिटल 10 से। और बैंक में कितना मिलेगा आपको? 8। 2 रुपए का क्या हुआ? लॉस। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, देन व्हाट? शेयर forfeiture डेबिट टू व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, 300 की 100, बैंक में कितना? 300 into what? 8, that is 2400. How much is your loss? 300 into 2, that's 600. And how much in capital? 300 into 10, that is how much? 3000. This is reissue of 300 equity shares. Reissue of 300 equity shares. Reissue के बाद एक एंट्री तो करनी है टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश। फ्री वाली एंट्री। व्हाट इज दैट फ्री वाली एंट्री? शेयर forfeiture टू व्हाट? बताओ मुझे। शेयर forfeiture में नेट प्रॉफिट कितना पड़ा हुआ है? व्हाट इज द नेट प्रॉफिट इन शेयर forfeiture? Will you do 700 minus 600? 100? कितने शेयर्स रीइश्यू किए हैं? तो 300 शेयर का प्रॉफिट माइनस 300 शेयर का लॉस। लेट्स कैलकुलेट 300 शेयर पे कितना हड़पा था आपने। यहाँ पे देखो नंबर 1 200 फोरफीट यहाँ पे किया था, 200 रुपए इधर हड़पा। पहला प्रॉफिट 200, दूसरा 500, 200 और 500 700, तीसरा 700, 1400 माइनस 600, 800 रुपए। तो शेयर forfeiture टू कैपिटल रिजर्व विल बी हाउ मच? 800 रुपया। 1400 माइनस 600। ये बात समझ आई कि नहीं? हेलो? तीनों का हड़पा हुआ पैसा, तीनों का हड़पा हुआ पैसा माइनस द लॉस। ये था forfeiture इन बिटवीन। जो नेक्स्ट सम है ना, इसका कोरोलरी है सम नंबर 11। कोरोलरी मतलब उसका कनेक्टिंग सम है। देखो सम नंबर 11 पढ़ो, क्या दिया? रेफर टू क्वेश्चन नंबर 10। Refer to question number 10 and give journal entries regarding reissue of shares in each of the following alternative cases. यहां पर भी तो reissue किया था, तो साला ये reissue और वो reissue में क्या फर्क? What is the difference? मतलब एंट्री इधर आएगा, रीइश्यू का एंट्री इधर आएगा। लिसन नाउ, जो अभी हमने किया ना, दिस वाज रीइश्यू एट द एंड। ये समझ आया? कैंसल आप बीच में कर रहे थे, कैंसल आप बीच में कर रहे थे, लेकिन रीइश्यू कभी किया? एंड में। अभी ये वाले एग्जांपल में दिया है कि भैया अगर रीइश्यू भी बीच में करते, मतलब इधर ही 5वें एंट्री में कैंसिल किया और 6वें एंट्री में रीइश्यू, यहाँ पे कैंसिल किया 8वें एंट्री में और 9वें एंट्री में रीइश्यू, इधर 11वें एंट्री में आपने कैंसिल किया और 12वें एंट्री में रीइश्यू, तो एंट्रीज कैसे दिखते वो पूछा गया आपको। ठीक है, तो पहला वाला केस पढ़ो। इफ P shares were reissued as 5 paid up for ₹4 per share. Can you see that? वो 5 paid up है ना, 5 paid up, 5 paid up नहीं 5 paid up का मतलब ये स्टेज है। 5 paid up 5 called up दिया ना, 5 paid up 5 called up,
मतलब आप एंड में रीइश्यू नहीं कर रहे हो, यहाँ रीइश्यू कर रहे हो आफ्टर अलॉटमेंट। अगर 7 पेड अप 7 कॉल्ड अप दिया ना, 7 पेड अप 7 कॉल्ड अप, मतलब यू आर डूइंग द रीइश्यू आफ्टर फर्स्ट। एंड 10 पेड अप 10 कॉल्ड अप या फुल्ली पेड अप फुल्ली कॉल्ड अप दिया है ना, तो यू आर रीइश्यूइंग एट दी एंड। तो आपको स्टेज बता रहे हैं, वो हिंट में आपको स्टेज बता रहे हैं कि कौन से स्टेज पे आपने रीइश्यू किया है। तो देखो पी का शेयर क्या दिया है उधर, वेयर रीइश्यूड एज 5 पेड अप एट रुपीज। तो हुआ क्या, ये पहला एंट्री सेम, सेकंड एंट्री सेम, थर्ड एंट्री भी सेम, फोर्थ एंट्री में पी का कॉल इन अरियर हुआ, उसके बाद फिफ्थ एंट्री भी सेम, फॉरफिट कर लिया। फिर यहां पर कंपनी रुका नहीं, कंपनी ने यहां पर क्या कर दिया, रीइश्यू। 5 रुपए का कॉल्ड अप कैपिटल है ना, लेकिन कितने में किया, तो 1 रुपया लॉस। शेयर फोर फीचर से उठाएगा 1 रुपया, समझा। 1 into 100 100 रुपीज। तो आपका ऑलरेडी इसमें 200 का प्रॉफिट हुआ है, तो 100 रुपया बचेगा ना आपका। 100 रुपया किधर डाल दोगे आप, कैपिटल रिजर्व, शेयर फोर फीचर टू कैपिटल ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट जैसे रीइश्यू एंट्री आती है वैसे एक और एंट्री करनी, 3 बार। जितनी बार रीइश्यू उतनी बार ट्रांसफर एंट्री। तो सब पूरा सम नहीं करेंगे हम लोग, खाली रीइश्यू और ट्रांसफर का करेंगे। तो अभी खाली 6 एंट्रीज करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करनी है 6 एंट्रीज। सर 1 मिनट। सर 1 मिनट रुको ना। बोर्ड में आएगा, बोलो। 1 मिनट वेट। रिंग क्या ना, गाय मत 11th वाले सम में ये सब वापस लिखने की जरूरत नहीं है। करता ना, आवाज नहीं आ रहा तुम्हें। I'm saying that 11th sum में again we don't have to write all that. प्लीज बी क्वाइट, घर पे डाउट आ रहा है। हेलो 11th sum में वापस ये सब नहीं सर, लिखना सर है एबल ना? टू लिसन टू कीर्तना। हाँ सर, Yes, we are sir. able to listen to her. हाँ बोलो। तो मैं बोल रही हूँ कि 11th sum में ये वापस सारे एंट्री करने की जरूरत नहीं है। हेलो हेलो हाँ सर। हाँ 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 सॉरी, बोलो। अरे आप आस्किंग कि 11th sum में ये सारे एंट्रीज वापस नहीं करना है ना? नहीं नहीं नहीं, ओनली रीइश्यू एंड ट्रांसफर, ओनली रीइश्यू एंड ट्रांसफर। सी नेक्स्ट पेज कंटिन्यूएशन है, ऐसा लिखो 11 सम कंटिन्यूएशन ऑफ 10। दिस इज क्वेश्चन 11 कंटिन्यूएशन फ्रॉम 10। ओके हाँ, अगर सपोज शेयर्स फोर फीचर हुए हैं और हमने बीच में मतलब रीइश्यू किए तो, और मतलब साथ में इधर 3 शेयर वो हुए हैं ना फोर फीचर, और हमने एंड में रीइश्यू किया है, तो अगर बीच में रीइश्यू करेंगे तो सबका ट्रांसफर एंट्री अलग अलग लिखने का या फिर एंड में साथ में लिखने का? अलग 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 अलग, वही तो मैंने बोला 6 एंट्रीज करनी। बोर्ड पे देखो अभी, चलो मुझे बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंट्री तक कोई चेंज? तो यहाँ पे एंट्री नंबर 6 है ना आपकी, तो खाली वो कनेक्ट करने के लिए आप 6 लिखो। ओके, तो ये सम की 6th एंट्री होगी आपकी किसकी, रीइश्यू। कितने शेयर आप रीइश्यू करोगे, 100 शेयर रीइश्यू करोगे। अच्छा, रीइश्यू की जर्नल एंट्री आपको मालूम है, व्हाट इज द एंट्री फॉर रीइश्यू? बैंक शेयर फोर फीचर to equity share capital, bank share forfeiture to equity share capital. 100 shares you are reissuing of कितना, कैपिटल को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से कि 10 से? 5 से, क्योंकि आप कहाँ रीइश्यू कर रहे हो, आफ्टर अलॉटमेंट। तो 100 into 5, जैसे कैंसिल करते वक्त 5 से किया था, रीइश्यू करते वक्त भी 5 से। अच्छा, बैंक में कितना आएगा, 100 into
4 और 4 फीचर में लॉस 100 into 1 दैट इज 100 रुपीज। अच्छा, रीइश्यू के साथ एक और एंट्री चिपक जाएगी, व्हाट इज दैट? ट्रांसफर एंट्री। व्हाट इज दैट एंट्री? शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। विल यू ट्रांसफर सबका प्रॉफिट माइनस सबका लॉस कि ओनली पी का प्रॉफिट माइनस पी का लॉस? क्योंकि पी का ही रीइश्यू हो रहा है, सिर्फ पी का शेयर रीइश्यू हो रहा है, तो पी का प्रॉफिट माइनस पी का लॉस। पी का कितना प्रॉफिट था यहाँ पे? 200 माइनस पी का कितना लॉस है? 100। तो कितना ट्रांसफर होगा? 100। ये ताबड़तोड़ कर देने का। 200 माइनस 100, पी का कहानी खत्म। शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब जब आप ये एंट्री करते फर्स्ट कॉल की, तो आप कितने शेयर पे फर्स्ट कॉल मंगवाते? पूरे 8000। पूरे 8000। ये 100 शेयर वाले भी अभी फर्स्ट कॉल भरेंगे और सेकंड कॉल भी भरेंगे। समझ में आ गई बात? ये हुआ पी का स्टोरी खत्म। वैसे ही आप यहां पर क्यू का शेयर आपने कैंसिल किया था, यहां पर आई थिंक क्यू का शेयर आपने इधर कैंसिल, मतलब 8th एंट्री में कैंसिल किया, राइट? 8th एंट्री में भी कैंसिल, आप देख लो ना, 8th एंट्री 4 फीचर की आपने की है। कैन यू सी दैट? 8th एंट्री में आपने पुराने समय क्यू को कैंसिल किया ना, उसके बाद ताबड़तोड़ 9th एंट्री में आप क्या करोगे? रीइश्यू करोगे। किसके शेयर? क्यू के शेयर्स रीइश्यू करोगे। अगर रीइश्यू इन बिटवीन हुआ होता तो वो हम लोग देख रहे हैं, तो वो एंट्री कैसी दिखेगी अभी? अच्छा, क्यू का पढ़ो क्या दिया? इफ क्यू शेयर्स वर रीइश्यूड एज 7 पेड अप एट 7 पर शेयर। व्हाट डू यू मीन बाय 7 पेड अप 7 कॉल्ड अप? पहले तो 7 पेड अप 7 कॉल्ड अप का मतलब आपको बोल रहे हैं कि यहां की है। कहां की है? आफ्टर फर्स्ट कॉल। यू हैव रीइश्यूड द शेयर्स आफ्टर फर्स्ट कॉल। दैट इज अ हिंट कि भैया वो शेयर 7 पेड अप है। 7 पेड अप या 7 कॉल्ड अप। 7 कितना होता है? 2 + 3 5 + 2 7, मतलब फर्स्ट कॉल के बाद। कब किए हैं? फर्स्ट कॉल के बाद। यू हैव रीइश्यूड द शेयर्स आफ्टर फर्स्ट कॉल। अब आगे जो दिया है ना, ₹4.7, दैट इज द प्राइस। 7 रुपए में रीइश्यू किए हैं, 7 रुपए के टाइम पे रीइश्यू किए हैं, और कितने प्राइस पे रीइश्यू किए हैं? 7। सो इट इज एट par. What if you would have reissued at 6 rupees? 1 रुपए का लॉस। What if you have reissued at 5 rupees? अबे 7 का 5 में रीइश्यू किया है तो 2 रुपए का लॉस, और 7 का 8 में रीइश्यू किया है 1 रुपए का प्रीमियम। 7 का 9 में रीइश्यू किया है, 7 का 10 में रीइश्यू किया है, 7 का 4 में रीइश्यू किया है, तो 3 रुपए का फॉरफीचर। बात समझ आई? तो 7 पेड अप 7 कॉल्ड अप का मतलब यू आर रीइश्यूइंग इट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। द फर्स्ट कॉल के बाद, फर्स्ट कॉल के बाद एंट्री क्या बनेगी? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। रीइश्यू की एंट्री कर रहे हो आप, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इज देयर एनी फॉरफीचर और प्रीमियम ओवर हियर? वाई 7 का शेयर आपने क्या भाव पे रीइश्यू किया? इज देयर एनी प्रॉफिट और लॉस? नो प्रॉफिट नो लॉस। तो कितना होता है? 100 into 7, 700 रुपया। अच्छा, इमीडिएटली इसके साथ एक और एंट्री करनी है, ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर एंट्री, व्हाट इज द ट्रांसफर एंट्री? शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। अच्छा, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। क्या हम सबका प्रॉफिट माइनस सबका लॉस ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ क्यू का प्रॉफिट माइनस क्यू का प्रॉफिट कितना था? चेक करो, 500 था, माइनस क्यू का कोई लॉस है? नहीं, तो हाउ मच वुड ट्रांसफर? 500। क्यू का प्रॉफिट माइनस क्यू का लॉस। क्यू का फॉरफीचर एंट्री देखो ना, 8th एंट्री। क्यू का फॉरफीचर एंट्री चेक करो सब लोग। पिछले सम में कितने का हड़पा था क्यू से हमने? 500। तो 500 माइनस कुछ रीइश्यू में लॉस हुआ? नहीं, तो 500 माइनस नील 500। समझाइए? अच्छा, यही लाइंस पे आर की एंट्री आप करो, ट्राई खुद से करो। आर का शेयर देखो क्या दिया,
were reissued as 11 per share as fully paid up. What do you mean by fully paid up, fully called up? यहाँ रीइश्यू हो रहा है, कहाँ रीइश्यू हो रहा है? एट दी एंड। तो 10 का शेयर आपने क्या प्राइस पे इश्यू किया है? तो करो, रीइश्यू एंट्री करो और ट्रांसफर एंट्री करो। सम में ये एंट्री कहां दिखेगी आपको? इसके बाद 12th और 13th, 12th और 13th। अरे 11th में 4 फीचर किया है ना, 11 में 4 फीट किया है ना, आर का रीइश्यू एंट्री और आर का ट्रांसफर एंट्री हो गया। आर का रीइश्यू एंट्री पहले तो कितने शेयर्स का करना है? 100 शेयर। क्या प्राइस पे रीइश्यू कर रहे हो? बोलो, क्या प्राइस पे रीइश्यू कर रहे हो? 11। अब 1 रुपए का प्रॉफिट है कि लॉस? प्रॉफिट किधर जाता है? शेयर प्रीमियम। तो बैंक टू कैपिटल टू प्रीमियम बराबर है। बैंक में कितना आएगा? 100 इंटू 11, 1100। कैपिटल में 100 इंटू 10, 1000। एंड प्रीमियम 100 इंटू 1, दैट इज 100। अच्छा, और ट्रांसफर एंट्री, व्हाट इज द ट्रांसफर एंट्री? शेयर forfeiture टू व्हाट? कैपिटल रिजर्व। शेयर forfeiture टू कैपिटल रिजर्व। किसका नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करना है? सबका प्रॉफिट माइनस सबका लॉस, कि पी का प्रॉफिट माइनस पी का लॉस, क्यू का प्रॉफिट माइनस क्यू का लॉस, कि आर का प्रॉफिट माइनस आर का? आर का प्रॉफिट माइनस आर का लॉस। आर का कितना हड़पा था? कितना प्रॉफिट था आर का? 700 था। माइनस कुछ लॉस है? नहीं, तो हाउ मच वुड यू ट्रांसफर? 700। सिंपल एज दैट। गॉट इट? ऐसा ही आने का भी चांस। नहीं नहीं, इतना नहीं, सीधा बीच में से पूछेगा। पास फॉर फीचर एंट्री एंड रीइश्यू। बहुत सारे हैं, भी आएंगे। ये पूरा कंसेप्ट बेस्ड सम्स है। अभी कंसेप्ट समझा रहेगा तो आगे के सम्स आएंगे। आपको मालूम होना चाहिए फोर फीचर का मतलब क्या? हड़पा हुआ पैसा। रीइश्यू में कम प्राइस पे रीइश्यू कर रहे हो तो फोर फीचर, ज्यादा पे कर रहे हो तो प्रीमियम। जैसे रीइश्यू कर रहे हो वैसे ट्रांसफर, क्रेडिट माइनस डेबिट, प्रॉफिट माइनस लॉस। या ये शेयर forfeiture टू कैपिटल, शेयर forfeiture टू कैपिटल। नहीं, ये रहा 700 का प्रॉफिट माइनस 0 लॉस, शेयर forfeiture टू कैपिटल। गॉट इट? ये वाला पार्ट समझा रीइश्यू का। रीइश्यू के साथ हमेशा कौन सा एंट्री चिपका के रखने का? ट्रांसफर एंट्री। अच्छा मुझे बात बताओ, आपने ये रीइश्यू इन बिटवीन कर दिया तो वापस रीइश्यू एट द एंड करोगे? एक ही बार होता है। पहले बार कर दिया रीइश्यू, बीच में खत्म, अभी वापस सब शेयर 8000 के 8000 हो गए। सब शेयर कॉल, फर्स्ट कॉल भर रहे हैं और सेकंड कॉल भी भर रहे हैं। बराबर है? आगे बढ़ो। नेक्स्ट सम नंबर सम नंबर 17 17 नहीं, देखो 17 सम। रंगून वाला कंपनी, रंगून वाला कंपनी issued 1000 shares of 100 each, payable as 30 on application, 50 on allotment and 20 on final call. मुझे बताओ प्रीमियम है कि नहीं? Is there any premium? बोलो। So what is the breakup? 30, 50 and 20. Application, allotment, first and final call. It forfeited
100 shares of 100 each, allotment time, that is the hint. It forfeited 100 shares of 100 each at allotment time. So when is it forfeiting? यहाँ पर. So is it forfeiture at the end or forfeiture in between? Forfeiture in between. Allotment time. मतलब it is 80 called up या 80 paid up. 80 paid up या 80 called up आपने shares cancel कर दिए. On which the first call of 20 per share was not yet called up. ये भी आपका hint है कि भैया आपने allotment के बाद shares को cancel कर दिया और अभी तक उस पे पहला कॉल का पैसा मांगा नहीं, अलॉटमेंट के बाद ही कैंसिल किया हुआ है. गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू द forfeiture ऑफ शेयर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस. उधर एक करेक्शन करना है. गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू forfeiture and reissue. Forfeiture and reissue of shares in each of the following alternative cases. forfeiture दिया है, उधर आगे एक्सटेंड करो. forfeiture and reissue. forfeiture and reissue. अभी reissue के साथ एक और एंट्री चिपक जाती है, दैट इज ट्रांसफर. तो केस 1 की 3 एंट्रीज, केस 2 की 3 और केस 3 की 3, टोटल 9 एंट्रीज करनी है. पूरा सम नहीं करना है आपको. आपको क्या पूछा है? खाली forfeiture and reissue. forfeiture and FART, FRT. forfeiture, reissue and transfer. तो पहला केस में 3 एंट्री, forfeiture, reissue, transfer, वापस forfeiture, reissue, transfer, वापस forfeiture, reissue, transfer. तो केस 1 ऐसा नाम दो, केस 1. केस 1 अलग है, केस 2 अलग है, केस 3 अलग है. तीनों पॉसिबिलिटीज दिया हुआ है. देखो कंपनी ने कितना शेयर्स इश्यू किया था? 1000. वेरी इंपॉर्टेंट सम, कंसेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है. थोड़ा भी ध्यान भटकेगा, नहीं समझ में आएगा, आगे का पूरा चैप्टर विल गो फॉर अ टॉस. ध्यानशी, नो डिस्ट्रैक्शन नाउ, यू वोंट अंडरस्टैंड. और यही सम टाइप ये आ जाएगा ना तुम्हारा स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में, बहुत सारा वैरायटी दिया है इसका. 8 मार्क जाएगा फोकस का. लिसन नाउ, आपने 1000 शेयर्स इश्यू किए थे, तो आपका पहला एंट्री क्या हुआ होगा? बैंक टू एप्लीकेशन 1000 इंटू 30, 30,000. फिर एप्लीकेशन टू कैपिटल 1000 इंटू 30, 30,000. फिर अलॉटमेंट टू कैपिटल 1000 इंटू 50, 50,000. फिर बैंक टू, हाँ बैंक CIA टू. कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि ये भाई के शेयर आफ्टर अलॉटमेंट फॉरफिट कर रहे हो आप, तो ये भाई ने अलॉटमेंट इसीलिए तो कैंसिल कर रहे हो. समझ में आ रही है बात? तो अलॉटमेंट नहीं भरा तो कितने शेयर पे नहीं भरा? 100 शेयर पे 50, 5,000 रुपया उसने नहीं भरा. बात समझ आ रही है? वो हो गए उसके कॉल इन अरे. और उसके बाद आप रुके नहीं, ताबड़तोड़ आपने क्या किए? कैंसिल किए. तो आपको वो सब एंट्री करनी ही नहीं है. बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, ये सब करने का जरूरत. आपको सीधा क्या करना है? forfeiture और रीइश्यूएंट. क्या करना है? forfeiture and reissue. उसमें पहला केस पढ़ो क्या दिया. If 40 of these shares were reissued at 80 paid up for 90 per share. पहले तो 40 शेयर्स रीइश्यू कर रहा है. फॉरफिट कितना किया था? 100 शेयर. 100 शेयर फॉरफिट किया था, लेकिन रीइश्यू कितना कर रहा है? 40. नंबर 1. 40 shares were reissued as 80 paid up at 90 per share. 80 paid up मतलब यहाँ पे रीइश्यू हो रहा है at 90 per share, मतलब 80 का कैपिटल 90 में रीइश्यू हो रहा है, मतलब 10 रुपया प्रीमियम. दूसरा केस, if 40 of these shares were reissued as 80 called up for 80 per share, मतलब वही स्टेज पे रीइश्यू हो रहा है. 80 called up मतलब आफ्टर अलॉटमेंट ही रीइश्यू कर रहा है, बट 80 का शेयर 80 में रीइश्यू कर रहा है. और तीसरा सिनारियो, if 40 of these shares were reissued as 80 paid up, 80 paid up मतलब यहां पर बट एट 70%, मतलब 80 का शेयर 70 रुपीज में रीइश्यू कर रहा है. 80 का शेयर 70 रुपीज में रीइश्यू कर रहा है, तो 10 रुपए का लॉस. तीनों एक साथ पॉसिबल नहीं है, तीनों इंडिपेंडेंट केसेस है. तीनों इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं. पहली सिचुएशन करेंगे फिर उसको भूल जाएंगे, फिर दूसरी सिचुएशन फिर उसको भूल जाने का, फिर
तीसरी सिचुएशन, ओके। अभी पहली सिचुएशन देखो, केस 1, सबसे पहली कौन सी एंट्री करनी है आपको? फोरफीचर। कितने शेयर्स आपने कैंसिल किए मुझे बताओ, सब में प्रीमियम था कि नहीं? तो एंट्री कर लो, इक्विटी शेयर कैपिटल। व्हाट इज द एंट्री फॉर फोरफीचर? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू व्हाट? CIA, call in arrear to what? Share forfeiture, correct? Equity share capital debit to call in arrear to share forfeiture. ध्यान से देखना, ओके? देखो, पहला चीज कैपिटल. How many shares are you canceling? 100. But the stage is important. When are you canceling? Are you doing it at the end or after allotment? So how much you will multiply your capital with? 80 रुपीज. जितने से क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट करो. अभी अभी किया हमने फोरफीचर इन बिटवीन. तो 100 इंटू 80 कितना होता है? 8000. टू कॉल इन अरियर. कॉल इन अरियर का मतलब जो पैसा उसने नहीं भरा. उसने क्या नहीं भरा? एप्लीकेशन तो भरा है, क्योंकि एप्लीकेशन ही भरा नहीं होता तो शेयर होल्डर ही नहीं होता. और अलॉटमेंट भरा है कि नहीं भरा? अलॉटमेंट नहीं भरा है पक्का कि भरा है? अरे भरा होता तो कैंसिल क्या को करते? आप अलॉटमेंट के बाद ही कैंसिल कर रहे हो. अलॉटमेंट उसने बिल्कुल नहीं भरा, तो कितना होगा उसका कॉल इन अरियर? 5000. तो आपको वो एंट्री वेंट्री देखने की जरूरत नहीं. आप सीधा क्या कर सकते हो? 100 इंटू 50. 100 इंटू 50 दैट इज 5000. दैट आर इज कॉल इन अरियर, राइट? अच्छा, तो बचा 3000. ये क्या होगा? फोरफीचर. फोरफीचर मतलब क्या? जो पैसा उसने भरा, जो हमने हड़पा. व्हाट डिड ही पे? 30 रुपए ऑन एप्लीकेशन भरा है ना. ऑन हाउ मेनी शेयर्स? ये हमने हड़प लिया. ये हो गया फोरफीचर. आपको पूरा फुल फ्लेजेड सम देखने की जरूरत. सीधा क्या करने का? कैपिटल कितने से कौन से स्टेज पे आप कैंसिल कर रहे हो? कौन से स्टेज पे कर रहे हो? आफ्टर अलॉट. तो 30 प्लस 50 80. और उधर दिया भी 80 कॉल्ड अप 80 पेड अप. 80 कॉल्ड अप 80 पेड अप मतलब यू आर डूइंग इट आफ्टर अलॉट. सो 80 रुपीज से कैपिटल कैंसिल. कॉल इन अरियर में 5 कहां से आया समझा? क्या पे नहीं किया था उसने? अलॉटमेंट, इसलिए कैंसिल किया. तो 5 मतलब 50 रुपया इंटू 100. और जो पे किया था उसने 30 रुपया, वो आ गया फोरफीचर में. ये बात समझ आई? अब इसी स्टेज पे आपने रीइश्यू किया है कि एंड में रीइश्यू किया है? We reissued it immediately, in between or at the end? Immediately. How did you get that? कैसे मालूम पड़ा एंड में रीइश्यू नहीं है और बीच में रीइश्यू किया? कैसे पता चला? फर्स्ट कॉल वाज नॉट येट कॉल्ड अप. उसके बाद पढ़ो नीचे, रीइश्यू में हिंट दिया है. 80 पेड अप. 80 पेड अप 80 कॉल्ड अप मतलब कब रीइश्यू हो रहा है? अलॉटमेंट के बाद. अगर फुल्ली कॉल्ड अप फुल्ली पेड अप दिया होता तो इट वुड हैव बीन रीइश्यूड एट द एंड. 100. What is the hint? 80 paid up या 80 called up? 80 paid up 80 called up दिख रहा है आपको? अब कब रीइश्यू कर रहे हो? इन बिटवीन. इन बिटवीन मतलब जैसे फोरफीट किया वैसे ही रीइश्यू कर रहे हो. अच्छा, पहला केस पढ़ो. केस 1. 40 of these shares were reissued as 80 paid up for 90 per share. 80 रुपए के शेयर आप 90 में रीइश्यू कर रहे हो. अभी 10 रुपया क्या है? प्रीमियम है. तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम. अभी अभी किया आपने प्रीमियम, बराबर है. सोचो अभी कितना शेयर्स रीइश्यू कर रहे हो आप? 40 शेयर. तो ये एंट्री कितने शेयर्स की करनी है? नॉर्मली आप जितने कैंसिल करते हो सबके सब रीइश्यू कर देते हो, है कि नहीं? है कि नहीं? यहाँ पे सबके सब शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए हैं. कितने हुए? 40. तो 40 इंटू क्या? बैंक में कितना है? 90. बैंक में आएगा 40 इंटू 90, ठीक है? 90 रुपीज मिल रहा है आपको. और कैपिटल में कितना आएगा? 40 इंटू 80 3200. क्यों 80 से मल्टीप्लाई किया? क्यों 100 से नहीं किया? यहां पर रीइश्यू हो रहा है. रीइश्यू कहां हो रहा है? आफ्टर अलॉटमेंट, नॉट एट द एंड. दैट्स व्हाई.
तो कैपिटल कितना से मल्टीप्लाई हो गया 80 से, मतलब जिसको भी रीइश्यू कर रहे हो ना वो बंदा फाइनल कॉल भरने वाला है, फाइनल कॉल वो भरेगा सबकी तरह, ही विल पे द फाइनल कॉल। इज दिस क्लियर? ये रीइश्यू बीच में हो रहा है, इसके लिए कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय 80। अब प्रीमियम में कितना आएगा 40 इंटू 10, 400 रुपया। जैसे आप रीइश्यू करते हो वैसे ही ट्रांसफर एंट्री भी करनी है। व्हाट इज द ट्रांसफर एंट्री? शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, आराम से, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। ओके, नॉर्मली आप क्या करते हो, क्रेडिट माइनस डेबिट। इधर कितने का प्रॉफिट हुआ है, माइनस लॉस कुछ है, तो क्या पूरा 3000 कर दूं? नहीं, क्यों नहीं करना है? वेरी गुड। आपने कितना रीइश्यू किया था? तो क्या आप 100 शेयर का प्रॉफिट को 40 के साथ कंपेयर कर सकते हो? और 60 शेयर्स बाकी है ना रीइश्यू करने के लिए, तो उसपे लॉस होगा ना। लॉस कहां से निकालना है? तो पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दोगे तो बचेगा क्या? तंबूरा फॉर फीचर पूरा खाली हो जाएगा। आर यू गेटिंग दैट? सो गम्मत, ये 3000 रुपया, ये कितने शेयर का प्रॉफिट है? 100 का प्रॉफिट 3000 है ना, तो 40 का कितना हुआ? 1200। तो 1200 माइनस कोई लॉस है? नहीं, तो कितना ट्रांसफर करो? 1200। बोलने का मतलब आप रीइश्यू कितना शेयर कर रहे हो? हाउ मेनी शेयर्स आर यू रीइश्यूइंग? 40। तो ट्रांसफर भी कितने का करने का प्रॉफिट? 40। 40 50 शेयर्स रीइश्यू करते 50 का करते, 60 शेयर्स रीइश्यू करते 60 का करते, 80 शेयर्स रीइश्यू करते 80 का ट्रांसफर करते, 100 शेयर्स रीइश्यू करते 100 का करते। आपने रीइश्यू सिर्फ 40 शेयर्स किए हैं। तो देखो यहाँ पे बोर्ड पे देखो, यहाँ पे मैं नोट बना रहा हूं, ये 4 फीचर और ये नंबर ऑफ शेयर्स। आपके 100 शेयर का प्रॉफिट था 3000, तो 40 शेयर का कितना? 1200। ये तो आता है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, करेक्ट? तो 1200 का प्रॉफिट माइनस कुछ लॉस हुआ नहीं, तो हाउ मच वुड यू ट्रांसफर? 1200 माइनस नील 1200। Why I did not transfer 3000 and why 1200? What would have happened if I transferred 3000? शेयर फॉर फीचर नील हो जाता, तो क्या प्रॉब्लम होती उससे? लॉस कहां से निकालना पड़ता? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व परमानेंट रिजर्व, उसको टच नहीं करने का। बात समझ आई? यस। ना, 80 पेड अप 80 कॉल्ड अप मतलब स्टेज, कौन से स्टेज पे किया? एट प्राइस एट 90%, मतलब उसने 90 रुपीज दिया। 90 पेड अप हो ही नहीं सकता। इधर स्टेज क्या है? आइदर इट कैन बी 80 पेड अप और इट कैन बी 100। इट कैन नॉट बी 90 पेड अप। ना 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 80 પેડ અપ 80 કોલ્ડ અપ છે ને, એકચ્યુઅલી કોલ્ડ અપ હોવું જોઈએ। આ સ્ટાન્ડર્ડ ટેક્સ્ટબુક વાળા બંનેને ભેલપુરી બનાવી। 80 પેડ અપ 80 કોલ્ડ અપ दोनों दिया हो, पेड अप कॉल्ड अप में घुस मत जाना। 80 पेड अप दिया हो या 80 कॉल्ड अप, सेम लेने का। 80 पेड अप 80 कॉल्ड अप मतलब ये स्टेज पे हो रहा है। 100 पेड अप 100 कॉल्ड अप मतलब लास्ट स्टेज पे हो रहा है। जिस स्टेज पे हो रहा है कैपिटल उतने से ही मल्टीप्लाई, एंड में हो रहा है तो 100 से, बीच में हो रहा है तो 80 से। गॉट इट? अभी अभी सेकंड पार्ट। हाँ, तुमको मैंने पहले दूसरे लेक्चर में ही बताया था, दिस लॉस कैन नॉट एक्सीड दिस प्रॉफिट। कंपनी करेगा ही नहीं, रीइश्यू नहीं करेगा, रहने देगा क्या, अपना जेब में से पैसा डाल के पैसा रेज नहीं करेगा। तो ये लॉस मैक्सिमम 3000 हो सकता, उससे ज्यादा नहीं, कभी नहीं हो सकता। ओके, अच्छा ये हुआ केस 1। ऐसे अभी केस 2, मुझे बताओ केस 2 में विल योर 4 फीचर एंट्री चेंज? 4 फीचर एंट्री चेंज होगी केस 2 में। खाली क्या चेंज हो रहा है? रीइश्यू। पढ़ो केस 2 में क्या दिया? 40 ऑफ दी शेयर्स were reissued as 80 called up। 80 called up म्हणजे कब किया? आफ्टर अलॉटमेंट at 80 per share at, is there any profit or loss on reissue? at par reissue किया है,
अच्छा, 4 फीचर एंट्री में कोई चेंज आएगी? आएगी क्या नहीं? पक्का आएगी कि नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 4 फीचर तो कर ही दिया है, सबका सेम ही है, सेम एज अबाव। अच्छा, अब रीइश्यू, ध्यान से बताओ, व्हाट विल बी योर एंट्री फॉर रीइश्यू? हाउ मेनी शेयर्स आर यू रीइश्यूइंग? 40. एनी प्रॉफिट, एनी लॉस? हाउ डिड यू अंडरस्टैंड नो प्रॉफिट नो लॉस? 80 का 80 में गया, एंट्री क्या होगी? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एकदम परफेक्ट, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नो प्रॉफिट। इसमें और इसमें, सॉरी, इसमें और इसमें फर्क बोलो। उधर प्रीमियम था, इधर एट पार है, उधर एक्स्ट्रा मिल रहा था, इधर सेम प्राइस पे गया, 80 का 80 मिला। अच्छा, ये और ये दोनों हो सकते हैं सेम सम में? अरे मतलब ये एंट्रीज भी और ये एंट्रीज भी। ये एंट्री हो गया, इसको भूल जाने का, अभी केस 1 फेंक देने का कचरे के डब्बे में। भाई नीचे भी 40 है यार, केस वाइज दिया हुआ है, तीनों केस है, तीनों अलग अलग सिनारियो है, ठीक है। अभी पहला केस हो गया, अभी दूसरे केस में आपने इतने ही फोरफिट किए, 100 फोरफिट किए, लेकिन उसमें से कितने रेशियो किए? 40, बट कौन से प्राइस पे किए? 80। तो इधर भी 80, 3200, और इधर भी 80, 3200। कैपिटल में क्यों 80 किया, समझा? वाई कैपिटल में 80, वाई नॉट 100? यहां पे रेशियो है आफ्टर अलॉटमेंट, आफ्टर अलॉटमेंट। कैसे पता चला आफ्टर अलॉटमेंट है? 80 called up, 80 paid up, that is the hint. समझाए छे? now इसके साथ ट्रांसफर एंट्री, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। बताओ, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, would you transfer 3000 minus 0, 3000? How much? How much would you transfer? Jia Saul, how much would you transfer in this case? ये तो हो गया 40 into 80। ट्रांसफर पूछ रहा हूं, ट्रांसफर शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। 3000 का प्रॉफिट है, माइनस कुछ लॉस है, पूरा 3000 कर दूं, 40 का लेंगे। कितना शेयर का प्रॉफिट लोगे? 40 का। क्यों? 40 रीइश्यू किया, 40 रीइश्यू किया है, तो प्रॉफिट भी कितने का ट्रांसफर करने का? 40 का। अभी अभी किया ना हमने। कितना है 40 शेयर का प्रॉफिट? 1200। माइनस लॉस है नहीं, तो फुल 1200, फुल 1200, 1200 माइनस नील 1200। अच्छा, केस 3, आखिरी केस, केस 3, एंट्री नंबर 1, 4 फीचर, विल इट चेंज? सेम एज अबव, सेम एज अबव। What is the difference now in case 3? Read. All of you read. All of you read. क्या दिया है केस 3 में? पढ़ो। If 40 of these shares were reissued as 80 paid up for, क्या हुआ चेंज? 80 paid up मतलब यहां पर ही हो रहा है, कैपिटल तो 80 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन पैसे कितने आ रहे हैं? 70 आ रहे हैं, तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? लॉस हो रहा है, तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक शेयर फॉर फीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बताओ, बैंक में कितने से मल्टीप्लाई करें? 40 into 70, 2800। फोर फीचर में कितना? 40 into 10, 400, एंड कैपिटल में कितना? 40 into 80, that is 3200। अब गम्मत, तीसरी एंट्री, आखिरी एंट्री, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। क्या अभी भी 1200 आएंगे? ये 40 शेयर्स रीइश्यू किए हैं, 800 आओ से, वेरी गुड। 1200 तो प्रॉफिट है 40 का, माइनस लॉस। 40 रीइश्यू किया है ना, तो 40 का प्रॉफिट माइनस 40 का लॉस। 100 रीइश्यू किया था, तो 100 का प्रॉफिट माइनस 100 का लॉस। प्रोपोर्शनेट लेने का, समझ में आया बात? तो 1200 माइनस 400, 1200 माइनस 400 कितना जाएगा इधर? 800। तीनों केस का डिफरेंस समझा? क्या था डिफरेंस बताओ? वॉज इट रीइश्यू एट द एंड और रीइश्यू इन बिटवीन? रीइश्यू इन बिटवीन में और एंड में फर्क क्या हो जाता है? कैपिटल। कैपिटल कितने से मल्टीप्लाई करने का?
80 से कि 100 से? 80 से। एंड में किया होता तो 100 से। बीच में कर रहा है तो रिस्पेक्टिव कॉल्स। इज दिस क्लियर? इधर बताओ, इधर 4 फीचर इन बिटवीन, आफ्टर अलॉटमेंट होता तो कैपिटल कितने से मल्टीप्लाई कर? 5 से। आफ्टर फर्स्ट कॉल 7 से। एट द एंड 10 से। बराबर है? कैसे पता चलेगा बीच में हो रहा है कॉल्ड अप या पेड अप दिया रहा है? कॉल्ड अप या paid up। बराबर है? फिर अगर आपने 100 शेयर फोरफिट किया और 40 रीइश्यू किया तो प्रॉफिट भी कितने का ट्रांसफर करना है? 40 का। 100 शेयर फोरफिट किया, 70 रीइश्यू किया तो प्रॉफिट भी कितने का ट्रांसफर करना है? 70 का प्रॉफिट माइनस 70 का, 40 का प्रॉफिट माइनस 40 का, 10 शेयर रीइश्यू किया, 10 का प्रॉफिट माइनस 10 का, 100 का शेयर 100 शेयर्स कर दिया तो 100 का प्रॉफिट माइनस। बाकी चाहिए आपको आगे के रीइश्यू। करो इतना। होमवर्क के लिए कुछ नहीं है। रिवाइज 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 एंड वी मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। इसी का कंटिन्यूएशन मंडे। कब लेके जाओगे? टाटा बाय बाय।